Hello students, chapter first solid state. Today's topic is application of semiconductors यानी कि अर्धचालकों के अनुप्रयोग. Applications of N-type and P-type semiconductors. Diode is a combination of N-type and P-type semiconductors and is used as a rectifier. Transistors are made by sandwiching a layer of one type of semiconductors between two layers of the other type of semiconductors. NPN and PNP type of transistors are used to detect or amplify radio or audio signals. The solar cell is an efficient photodiode used for conversion of light energy into electrical energy. The various combinations of N-type and P-type semiconductors are used for making electronic components. तो ये हमें पता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए हम एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर ग्रुप 14 एलिमेंट्स and therefore have a characteristic valence of 4 and form 4 bonds as in diamond. A large variety of solid state materials have been prepared by combination of group 13 and 15 or 12 and 16 to simulate average valence of 4 as in germanium or silicon. Typical compounds of group 13 and 15 are in antimony, AIP and GAS यानी कि गैलियम आर्सेनिक. गैलियम arsenide semiconductors have very fast response and have revolutionized the design of semiconductors devices. ZNS and have ZNS, CDS, CDAC and HGTE are examples of group 12 and 16 compounds. In these compounds, the bonds are not perfectly covalent and the ionic character depends on the electronegativities of the two elements. Interesting to learn that transition metal oxides shows marked differences in electrical properties. TiO, CrO2 and ReO3 behave like metals. Rhenium oxide ReO3 is like metallic copper in its conductivity and appearance. Certain other oxides like VO, vanadium oxide, VO2, VO3 and TiO3 show metallic or insulating properties depending on temperature. Germanium and silicon are group 14 elements and therefore have a characteristic valence of 4 and form 4 bonds as in diamond. A large variety of solid state materials have been prepared by combination of group 13 and 15 or 12 and 16 to stimulate average valence of 4 as in germanium or silicon. Transition oxides including vanadium also have high electrical property. ये क्लियर हो गया है हमारा यहाँ पे. चलिए अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, every substance has some magnetic properties
एसोसिएटेड विथ इट। तो सभी सब्सटेंस के पास में किसी न किसी प्रकार की चुंबकीय गुण होते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। Each electron in an atom behaves like a tiny magnet. Its magnetic moment originates from two types of motions. First, its orbital motion around the nucleus, and second, its spin around its own axis. Electron being a charged particle and undergoing these motions can be considered as a small loop of current which possesses a magnetic moment. Thus, each electron has a paramagnet spin and an orbital magnetic moment associated with it. Magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in the unit called Bohr magneton, जिसको हम म्यू बी से मेंशन करते हैं. It is equal to 9.27 into 10⁻⁻24 a meter square. On this basis of these magnetic properties, substance can be classified into 5 categories: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and फेरीमैग्नेटिक. ये 5 प्रकार के इसमें हम सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिक substances are weakly attracted by a magnetic field. They are magnetized in a magnetic field in the same direction. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons which are attracted by the magnetic field. O2, Cu plus 2, Fe plus 3, Cr plus 3 are some examples of such substance. तो यहाँ हम चुंबकीय गुणों की बात करें तो सभी पदार्थों के साथ कुछ न कुछ चुंबकीय गुण होते ही हैं और इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है. एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और चुंबकीय आघूर्णन जो होता है वो 2 प्रकार की गतियों से होता है. एक होता है उसके नाभिक के आसपास के चारों ओर की कक्षक गति और उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण. तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है जिसमें चुंबकीय आघूर्णन पाया जाता है. इस प्रकार का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्ष चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है. इस चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम बहुत कम होता है और इसे मापे जाने वाली इकाई को बोहर मैग्नेटोन म्यू बी कहा जाता है और इसका जो मान होता है वो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 a मीटर स्क्वायर होता है. पदार्थ को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर हम 5 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं. अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहचुंबकीय, प्रतिलोहचुंबकीय और फेरीचुंबकीय. तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अनुचुंबकत्व. अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं. ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं. अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं. तो इसके एग्जाम्पल हैं O2, Cu plus 2, Fe plus 3, Cr plus 3. ऐसे पदार्थ इसके उदाहरण होते हैं. चलिए दूसरा हम देखते हैं
डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकत्व। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर weakly replied by a magnetic field, H2O, NaCl and C6H6 are some examples of such substance. They are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction. Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electrons. Pairing of electrons cancels their magnetic moments and they lose their magnetic character. तो जब प्रतिचुंबकत्व की बात हम करते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। H2O, NaCl और C6H6 ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म यानी लो चुंबकत्व। कुछ पदार्थ जो होते हैं जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2 ये बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। A few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium and CrO2 are attracted very strongly by magnetic field. Such substances are called ferromagnetic substance. Besides strong attractions, these substances can be paramagnetically magnetized. In solid state, the metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into small regions called domains. तो यहाँ कुछ पदार्थ जो होते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और ऐसे पदार्थों को लो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में लो चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं और इन्हें डोमेन कहा जाता है। Thus, each domain acts as a tiny magnet in an unmagnetized piece of a ferromagnetic substance. The domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled. When the substance is placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of the magnetic field and a strong magnetic effect is produced. This ordering of domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance becomes a paramagnet. चलिए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करता है और लो चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है और लो चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाते हैं। अब आया हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म
यानी कि प्रतिलोह चुंबकत्व। Substance like MnO showing antiferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic substance, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment। यानी कि प्रतिलोह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे कि MnO में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। अब एक हमारा लास्ट में होता है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड when the magnetic moments of the domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers. They are weakly attracted by magnetic field as compared to ferrimagnetic substance Fe3O4 and ferrites like MgFe2O4 and ZnFe2O4 are examples of such substances, and these substances also lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic। तो इसके साथ में हमारा ये फेरीमैग्नेटिज्म भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका चित्र देखते हैं। इसमें देखिए आप पैरामैग्नेटिक में आप जो उनका फील्ड दिखाई दे रहा है वो सारे एरोस कैसे हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। डिस्टर्ब यानी चुंबकीय आघूर्ण का जो व्यवस्थित जो संरूपण है वो नहीं है इसमें। दूसरा हम देखें फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में सभी पैरेलल है, एक जैसे डायरेक्शन में सभी पैरेलल है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखें हम तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन उनका कैसा है, अपोजिट है। और फेरीमैग्नेटिक में देखते हैं हम तो फेरीमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है, पैरेलल है और कुछ क्या है जो डोमिनोज है सब्सटेंस अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों में है। देखिए आप तो इस तरह से पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इक्वल हो जाने के नंबर में हो जाने के कारण दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देती हूँ मैं। जो आज के टॉपिक में हमने कवर किया है वो है एन प्रकार और पी प्रकार के जो अर्धचालक हमारे होते हैं उनके बारे में हमने बात कही है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। तो एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो विभिन्न संयोजनों को इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने के में प्रयोग किया जाता है। डायोड का नाम आपने सुना ही होगा। डायोड एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों का एक संयोजन होता है और परिशोधन के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। तो परिशोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालक को परत को अन्य प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के मध्य सैंडविच करके बनाए जाते हैं। तो दो एन के बीच में पी टाइप का अर्धचालक और दो पी टाइप के बीच में एन टाइप का अर्धचालक यानी एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान और प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सौर सेल एक दक्ष फोटोडायोड है जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अब हम चुंबकीय गुणों की बात करें तो सभी पदार्थों के साथ कुछ न कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं और इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है।
उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों के कारण होता है। एक तो उनकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति और दूसरा अपने कक्ष पर चारों ओर चक्रण। चलिए, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि नाभिक के आसपास का और दोनों चक्रण यहाँ पे चित्र में हमको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। पदार्थों का उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है उनको। अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं अनुचुंबकत्व। तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3 ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा हम देख रहे हैं प्रतिचुंबकत्व। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। H2O, NaCl और C6H6 ऐसे पदार्थ के उदाहरण हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। लोह चुंबकत्व की बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, गैडोलियम और CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे टुकड़ों में एक साथ समूहित हो जाते हैं और इन्हें हम डोमेन कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लोह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम बना रहता है और लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो स्थायी चुंबक कौन बनता है? लोह चुंबकत्व जो जिसमें होता है वो पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ MnO में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। फिर है फेरी चुंबकत्व। जब पदार्थ में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण समांतर एवं प्रति समांतर दिशा में असमान होता है और पदार्थ में फेरी चुंबकत्व दिखाई देता है। लोह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। Fe3O4 और फेराइट MgFe2O4, ZnFe2O4 जैसे पदार्थों के उदाहरण हैं। ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। अब हम चित्र में देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण का जो व्यवस्थित संरेखण होता है उसमें क में देखिए लोह चुंबकीय जिसमें सभी समांतर है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है प्रतिलोह चुंबकीय, उसमें दोनों विपरीत दिशा में, समांतर तो है लेकिन कैसे है, विपरीत दिशा में है। और फेरी चुंबकत्व में देखिए कि समांतर है लेकिन वो अव्यवस्थित असमान रूप से वितरित होते हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है इसमें।
तो यहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रावस्था ये कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स हमको बना के तैयार करना है और आपको इसके होमवर्क क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो वो आपको कॉपी में सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर सेकंड विलियन की शुरुआत करेंगे।